دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تأملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ ہیرا کے ایک غار میں جا رہتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح رستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ دوستو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہیرا میں خلوت نشینی کا 3واں سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دوستو مورخین میں بڑا اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں شرف نبوت اور اعزاز وحی سے سرفراز ہوئے۔ بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ تھا۔ ہمارے نزدیک دوسرا قول زیادہ صحیح ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے، یہی لیلۃ القدر اللہ کے نزدیک۔ دوستو آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں۔ یہ انوار العہود کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و دلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار ہیرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے
और फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन इतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हक़ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि उस पर उसने मुझे पकड़कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी कुव्वत नचोड़ दी, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बकल अकरम। तर्जमा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो तुम्हारा रब निहायत करीम है। दोस्तों, इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खदीजा बिनते खवैलद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा ने कहा कितन नहीं, बखुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रुसवा ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमानदाओं का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमान की मेज़बानी करते हैं और हक़ के मसाइब पर आनत करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गई। वर्का दौरे जahलियत में ईसाई हो गए थे और अबरानी में लिखना जानते थे, चुनांचे अबरानी ज़बान में हस्बे तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। उस वक़्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। इनसे हज़रत खदीजा ने कहा भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा भतीजे तुम क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वर्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा यह तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा पर नाज़िल किया था। काश मैं उस वक़्त तवाना होता, काश मैं उस वक़्त ज़िंदा होता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो इससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्का जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। दोस्तों, तबरी और इब्ने हिशाम की रिवायत से मालूम होता है कि आप अचानक वही की आमद के बाद गारे हिरा से निकले तो फिर वापस आकर अपनी बकिया मुद्दत क़याम पूरी की। इसके बाद मक्का तशरीफ़ लाए। तबरी की रिवायत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने के सबब पर भी रोशनी पड़ती है। रिवायत ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत न था। मैं शिद्दत नफ़रत से उनकी तरफ देखने की ताब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा कि ये नकारा यानी खुद आप शायर या पागल हैं, मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ से अपने आप को नीचे लड़का दूंगा और अपना खात्मा कर लूँगा और हमेशा के लिए राहत पाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यही सोच कर निकला। जब बीच पहाड़ पहुँचा तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ मुहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्रील एक आदमी की शक्ल में उफ़्क़ के अंदर पाँव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं ऐ मुहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्रील को देखने लगा और उस शक्ल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया। अब मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफ़्क़ में घुमा रहा था और उसके जिस गोशे पर भी मेरी नज़र पड़ती थी जिब्रील इसी तरह दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खदीजा ने मेरी तलाश में अपने कासद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्रील चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया और खदीजा के पास पहुंचकर उनकी रान के पास इन्हीं पर टेक लगाकर बैठ गया। इन्होंने कहा अब्बू अल कासम आप कहाँ थे?
बखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा था इन्हें बता दिया। इन्होंने कहा, चचा के बेटे, आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ आप इस उम्मत के नबी होंगे। और इसके बाद वो वर्का बिन नौफल के पास गईं, इन्हें माजरा सुनाया। इन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में वर्का की जान है, उनके पास वही नामूस से अकबर आया है जो मूसा के पास आया था। ये इस उम्मत के नबी हैं और उनसे कहो साबित कदम रहें। इसके बाद हज़रत खदीजा ने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का की बात बताई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का ने मुलाकात की और आपकी ज़ुबानी तफसीलात सुनकर कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी हैं। आपके पास वही नामूस से अकबर आया है जो मूसा के पास आया। दोस्तों, रही ये बात कि वही कितने दिनों तक बंद रही, तो इस सिलसिले में इब्ने साद ने इब्ने अब्बास से एक रवायत नकल की है जिसका मफहूम ये है कि ये बंदिश चंद दिनों के लिए थी और सारे पहलुओं पर नज़र डालने के बाद यही बात राजे बल्कि यकीनी मालूम होती है। और ये जो मशहूर है कि वही की बंदिश 3 साल या 2.5 साल तक रही, ये तो कितन सही नहीं है। अलबत्ता यहाँ दलाइल पर बहस की गुंजाइश नहीं है। वही की इस बंदिश के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ीनो गमगीन रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैरत व इस्तेजाब तारी रहा। चुनांचे सही बुखारी किताबुल ताबीर की रवायत है कि वही बंद हो गई, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन हुए कि कई बार बुलंद बाला पहाड़ों की चोटियों पर तशरीफ़ ले गए कि वहाँ से लड़क जाएं। लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुँचते कि आप अपने आप को लड़का लें तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नमूदार होते और फरमाते, ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल बरहक हैं। और इसकी वजह से आपका इज़्तिराब थम जाता, नफ्स को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की बंदिश तूल पकड़ जाती तो आप फिर इसी जैसे काम के लिए निकलते। लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुँचते तो जिब्राईल नमूदार होकर फिर वही बात दोहराते। दोस्तों, हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं कि ये वही की चंद रोज़ा बंदिश इसलिए थी ताकि आप पर जो खौफ तारी हो गया है वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक़ व इंतज़ार पैदा हो जाए। चुनांचे जब हैरत के साए सुकड़ गए, हकीकत के नकूश पुख्ता हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप खुदाए बुजुर्गों बरतर के नबी हो चुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो शख्स आया था वो वही का सफ़ीर और इस्मानी खबर का नाकिल है। और इस तरह वही के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक़ व इंतज़ार इस बात का ज़ामिन हो गया कि आइंदा वही की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए। सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बंदिश वही का वाक़या सुना। आप फरमा रहे थे कि मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उससे खौफज़दा होकर ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने अपने अहले खाना के पास आकर कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इन्होंने मुझे चादर उड़ा दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुदस्सिर से व रुज्ज़ा फहजुर तक नाज़िल फरमाई। फिर नज़ुल वही में गर्मी आ गई और वो प्या नाज़िल होने लगी।